हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है MMPC 004 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चों की बैक इसी पेपर में आती है फर्स्ट सेमेस्टर में। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कीजिए। इसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आएगा, बट न्यूमेरिकल मैं अभी आपसे इसमें वीडियो में रिजॉल्व नहीं करूँगा। रीज़न बीइंग क्योंकि आपको कोई 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आई वुड सजेस्ट कि न्यूमेरिकल अब लास्ट मोमेंट पर आप तैयार मत कीजिए, क्योंकि पेपर आपका बहुत नज़दीक है। अगर आपको पहले से कुछ प्रैक्टिस कर रखे है देन यू वुड ट्राई न्यूमेरिकल, वरना पेपर में न्यूमेरिकल का एक ही नेचर है, या तो आपके 20 नंबर हाथ में या फिर आपके 0। तो अगर आपको नहीं आता तो इट्स बेटर कि आप थ्योरी वाला कर दे, ताकि आपको लिखने के कुछ नंबर तो मिल जाएंगे। तो चलिए फर्दर डिले नहीं करते हैं और क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं। सो व्हाट इज बैलेंस शीट? डिस्क्राइब इट्स कंटेंट एंड क्लासिफिकेशन। मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट: अ बैलेंस शीट is a financial statement which shows the financial position of a business on a particular date. It tells what the business owns, like assets, what the business owes, that is liabilities, owner's investment, that is capital. Example: think of your personal balance sheet on salary day. बाइक, मोबाइल assets हो गए, EMI क्रेडिट कार्ड बिल्स आपकी liabilities है, and your savings is the capital. Content of balance sheet: balance sheet has two sides. पहला assets, what business owns, that is fixed assets used for long time. Land, building, machinery, example factory building is an asset. Current assets used within 1 year, like cash, stock, debtors, cash in your cash box. Liabilities क्या है? What business owes. Long term liabilities like long term loans, debentures, example bank loan for 10 years. Current liabilities क्या हुई? Creditors, bills, payables, example किराना स्टोर का उधार. Capital, owners investment plus retained profits, ये आपका capital हुआ. Classification of balance sheet: assets, fixed assets, current assets, liabilities, long term liabilities, current liabilities, capital. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन सेकंड: व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? फीचर्स, बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग अ पीरियड। एग्जांपल: सैलरी क्रेडिट इज इक्वल टू कैश फ्लो, पिज्जा प्लस मूवी एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो। पैसा आया कैश इनफ्लो, पैसा गया कैश आउटफ्लो। फीचर्स: बेस्ड ऑन कैश नॉट प्रॉफिट, शोज लिक्विडिटी पोजीशन डिवाइडेड इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? To know cash position, to plan future cash needs, to check ability to pay bills. Benefits क्या है? Helpful for management decisions, useful for investor and creditors, prevents cash shortages and surprises. Cash flow from investing activities includes purchase of machinery, that is outflow, sales of fixed assets, that is inflow, purchase, sale of investments, interest received, dividend received. Example: bought laptop, cash का outflow है, sold old bike, that is cash inflow, जो आपके पास पैसा आया है। What is activity based costing? ABC: features, objectives and implementation. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। यहां ना समझ में आए तो किसी और जगह से तैयार कर लेना, बट ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। Activity based costing allocates cost based on activities instead of volume. Example है electricity bill divided based on room usage, not family members. Features: accurate cost allocation, focus on activities, helps cost control. Objectives: correct product cost, reduce unnecessary activities, better pricing decisions. Process of ABC: identify activities, assign costs to activities, identify cost drivers, allocate costs to products. ये आपका क्वेश्चन थर्ड हो गया। क्वेश्चन फोर्थ: एक्सप्लेन परफॉर्मेंस बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग: बजट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स, नॉट ओनली मनी। एग्जांपल है टीचर्स का बजट लिंक्ड विद स्टूडेंट्स रिजल्ट्स। जीरो बेस्ड बजटिंग: एवरी एक्सपेंस स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, नो ऑटोमेटिक अप्रूवल। पापा आस्किंग फोन रिचार्ज क्यों चाहिए, प्रूफ दो, वो वाली बात आती है। क्वेश्चन फिफ्थ है रेशियो एनालिसिस। मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड एक्टिविटी रेशियोज। रेशियो एनालिसिस स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल फिगर्स। एग्जांपल के लिए इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस, शेविंग रेशियो आपका देता है। सिग्निफिकेंस: मेजर्स एफिशिएंसी, कंपेयर परफॉर्मेंस, हेल्प्स इन्वेस्टर्स एंड मैनेजमेंट टू डिसाइड। Activity and efficiency ratio: inventory turnover ratio, speed of stock sale, debtor turnover ratio, speed of collection, credit turnover ratio, speed of payment, fixed asset turnover ratio, use of fixed assets. ये आपका क्वेश्चन फिफ्थ भी हो गया। क्वेश्चन सिक्स्थ है आपका: व्हाट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फ्रॉड ट्रायंगल, रोल ऑफ प्रेशर एंड अपॉर्चुनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 3 बार लगातार ये क्वेश्चन फंसा है। देयर आर चांसेस कि इस बार भी आपका आ जाए। फॉरेंसिक अकाउंटिंग जरूर याद कर लीजिएगा। फॉरेंसिक ट्रायंगल फॉर फ्रॉड ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेट्स फाइनेंशियल फ्रॉड्स यूजिंग अकाउंटिंग प्लस लॉ। एग्जाम्पल: सीआईडी ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही समझ लो, सीआईडी, एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत तीनों मिलकर जो अकाउंटिंग की, फाइनेंस की अकाउंटिंग करते हैं, वो वाली बात है कि पकड़ने आना कि कहां गड़बड़ हो रही है, कहां पे धोखाधड़ी हो रही है। फ्रॉड ट्रायंगल: 3 रीजन होते हैं जो फ्रॉड करा जाता है। एक तो प्रेशर में, नीड फॉर मनी, जब बंदा बहुत ज्यादा डेट में दब जाता है तब फ्रॉड करता है। अपॉर्चुनिटी, वीक कंट्रोल, जहां हमें लगता है कि सिस्टम लैगिंग कर रहा है, वहां पे हम थोड़ा वीक करने अपॉर्चुनिटी देख के चांस मारते हैं कि हम फ्रॉड कर सकते हैं। फिर है रैशनलाइजेशन, सब करते हैं माइंडसेट कि जैसे सब तो कर ही रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कूड़ा फेंकना है, कूड़ा फेंकना सब तो फेंक ही रहे हैं, तो हम भी फेंक देते हैं, ठीक बात है, बट वो कूड़ा अगर जुर्माना लगा दिया उसी कूड़े पे फेंकने पे तो आप नहीं करेंगे। रोल ऑफ प्रेशर: डेट, लाइफस्टाइल, गैम्बलिंग। रोल ऑफ अपॉर्चुनिटी: पुअर सुपरविजन, नो इंटरनल कंट्रोल। व्हाट इज जर्नल प्रोसेस एंड एडवांटेजेस?
Journal is the book of original entry where transactions are first recorded. Example, mobile diary where you note expenses daily. Process of journalizing, identify transaction, identify debit and credit, record with narration. Advantages, chronological order, reduces error, legal evidences. Question 8 है आपका, what is marginal costing, differences, utility and limitations. Marginal costing considers only variable costs. Example, extra samosa cost, aloo plus oil only. Marginal versus absorption costing. Marginal variable cost only, absorption fixed plus variable. Decision making, inventory valuation. Utility, profit planning, cost control, break even analysis. Limitation, ignores fixed cost, not useful for long term. Question 9 है आपका, what is budget and budgetary control steps. A budget is a financial plan for future. Example, monthly pocket money planning. Budgetary control, comparing actual performance with budgeted figures. Steps, fix objectives, prepare budgets, communicate budgets, compare actual versus budget, take corrective actions. अब DuPont एनालिसिस एंड अल्टमन जेड स्कोर आएगा, ध्यान रखना, कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और आपका एक्सप्लेन करके 10-10 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो तैयार कर लेना। DuPont एनालिसिस, ब्रेक ROE, रिटर्न ऑन एंटरप्राइजेस into profit margins, asset turnover, financial leverage, salary into saving habit into investments. Altman Z score predicts bankruptcy risk. Example, health checkup of a company. What is human resource accounting? HRA. HRA measures a values of employee in monetary terms. एम्प्लॉय की औकात करना, तो ये समझ लो स्टार एम्प्लॉय को जैसे हम कहते हैं कंपनी का कोहली है, और जो वीक एम्प्लॉय उसको हम बोलते हैं कंपनी का शुभमन गिल है, तो वो वाली बात आती है। यूज एज अ मैनेजमेंट टूल, ट्रेनिंग डिसीजन, एम्प्लॉय रिटेंशन, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो एग्जाम के टिप्स भी लेते रहो मेरे से कि भाई एग्जाम में टिप्स क्या है। राइट हेडिंग्स, यूज एग्जांपल्स, ड्रॉ सिंपल डायग्राम्स जहां भी पॉसिबल हो। तो ये चीजें अगर आप कर लोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से स्मूथली निकल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। MMPC 004 के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड क्रिसमस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां।